یہ ہفتہ اب سب کے لیے کیسا گزرے گا؟ تفصیل سے جانیں شامی روحانی ٹی وی کے ذریعے۔ برج حمل، اس ہفتے آپ کو زیادہ کام اور ذمہ داریاں اٹھانی ہوں گی، لیکن بہتر صحت کے لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زیادہ کام کرنے سے گریز کریں۔ دوسری صورت میں، شروع میں دوسرے گھر میں موجود چاند نہ صرف آپ کو دباؤ میں ڈالے گا بلکہ آپ کو تھکاوٹ بھی محسوس ہوگی۔ تاہم اس وقت کے دوران چاند 12 گھر پر اپنا مکمل رخ رکھے گا جو آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ اس ہفتے غیر ملکی سے متعلق کاروبار کو منظم کرتے ہیں تو آپ کو بہت سے نئے ذرائع سے تعلق قائم کرنے اور معاشی فوائد حاصل کرنے میں بہت زیادہ کامیابی ملنے کا امکان ہے ان کی طرف سے۔ اس کے لیے آپ کو شروع سے ہی تیار رہتے ہوئے صحیح حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ اس ہفتے آپ اپنے پرانے دوستوں یا قریبی دوستوں کو دعوت دے سکتے ہیں، کیونکہ اس دوران آپ کے پاس اضافی توانائی ہوگی جو آپ کو کسی بھی پارٹی یا تقریب کا اہتمام کرنے کی تحریک دے گی۔ تاہم ایسا کچھ کرنے سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں سے ضرور بات کر لیں۔ اس ہفتے زحل کی براہ راست حرکت اور اس کے اثرات جو کہ آپ کے 10 گھر پر ہے، آپ کو اپنی مرضی کا کام مل سکتا ہے، لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے کام کو جلد بازی میں نہ کریں اور ہر کام پوری لگن سے کریں۔ تندہی، تبھی آپ اپنے کام کی جگہ پر ترقیاں حاصل کر سکیں گے۔ اس رقم کے تمام طلبہ جو بیرون ملک جانے کا ارادہ کر رہے ہیں ان کو اس ہفتے کے وسط میں چاند کے شبہ ہونے کی وجہ سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ تاہم اس کے لیے آپ کو اپنی توجہ اپنے مقصد کی طرف رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ جب یہ کام کرتا ہے تو یہ رشتہ سب سے زیادہ پیچیدہ، سنسنی خیز اور بے ساختہ ہو سکتا ہے۔ دو میش افراد جو حقیقی طور پر محبت میں ہیں ایک ایسے جذبے کا اشتراک کریں گے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ بلندیوں تک لے جانے سے کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ تاہم کچھ سمجھوتوں کی ضرورت ہے تاکہ ان کی باہمی خوبیوں کا بہترین مظاہرہ کیا جا سکے۔ اگرچہ میش ٹوئن کا مطالبہ کرتی ہے اور ہمیشہ رقم کا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن اس شراکت میں میش کی مطابقت کا تقاضا ہے کہ دوسرے ساتھی کو کبھی کبھار جیتنے یا قیادت کرنے کی اجازت دی جائے، صرف کبھی کبھار، چونکہ ان کے پاس اب بھی زیادہ اہم سبق ہیں۔ میش کے لیے جنسی زندگی پہلے نہیں آتی، اور یہ باہمی بے حسی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کا ہے کہ اعلیٰ سماجی سرگرمیوں کے حالات میں قربت کے لیے عملی طور پر کوئی وقت نہیں ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی پیار نہیں ہے، اور یہ انہیں ایک دوسرے کے کامیاب عاشق بننے سے نہیں روکتا۔ ایک ساتھی کو محسوس کرنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی خواہش بستر میں میش اور میش کی اعلیٰ ہم آہنگی کی بات کرتی ہے۔ ان کی فطرت کا جذبہ اور کشادگی انہیں ایک ایسی مباشرت زندگی فراہم کرتی ہے جو دلچسپ اور لچکدار ہو۔ اس سے مدد ملتی ہے کہ اگر دونوں شراکت داروں کے اپنے اپنے مشاغل اور دلچسپیاں ہوں جہاں وہ اپنے ساتھی ہیرو سے قطع نظر رشتے کے موروثی مسابقت کو سنبھال سکیں۔ مقابلہ اب بھی واضح ہوگا اگر دونوں شراکت دار ایک ہی چیزوں میں شامل ہیں۔ میش اور میش کے درمیان مطابقت کی بہترین شکل کے لیے دونوں شراکت داروں کو اپنے اپنے طریقوں سے اپنے اپنے شعبوں میں کامیاب ہونا چاہیے۔ اس سے درجہ حرارت کو کچھ حد تک کم کرنے میں مدد ملے گی اور کم قابل قبول خود غرضی کی نفی کرتے ہوئے اس تمام جوش و جذبے کا اچھا پہلو سامنے آئے گا۔ کیا آپ میش کے ساتھ اپنی مطابقت کے بارے میں کسی ماہر سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ رقم کے ماہرین سے ابھی مفت میں رابطہ کریں۔ آئیے ایک لمحے کے لیے افسانوی ہیرو کی طرف واپس جائیں۔ میش اور میش جنگ کے پابند ہیں کیونکہ یہ ان کی نفسیات میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آیا وہ ایک دوسرے سے لڑنے جا رہے ہیں، وہ ایک ساتھ مل کر لڑنے جا رہے ہیں۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے بجائے ساتھ ساتھ لڑیں تو یہ ایک نہ رکنے والی شراکت داری ہے۔ اگر نہیں تو میش اور میش کے درمیان مطابقت خراب اور انتہائی خوفناک انجام کو برباد کر سکتی ہے۔ اگر شراکت داروں میں سے کوئی کمبل کو اوپر کھینچنا شروع کر دے تو پریشانی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اصولی طور پر دوسری رقم کے ارکان کے ساتھ ہوتا ہے۔ میش کا آدمی اپنی بیوی سے تعریف اور اپنی مردانہ مہارت کی تعریف چاہتا ہے، اور اگر کوئی عورت اس معاملے میں عقلمندی کا مظاہرہ کرتی ہے اور اس کھیل کے ایک پہلو کے طور پر تسلیم کرتی ہے جنسی مساوات میں، تو اس کا مکمل شکریہ ادا کیا جائے گا۔ ضدی لوگ بھی بستر پر متبادل قیادت سے اتفاق کرتے ہوئے سمجھوتا پا سکتے ہیں۔ برج سور، میش اور سور کی مطابقت ممکن ہے اگر دونوں رقم ایک دوسرے سے گہری محبت رکھتے ہوں۔ پہلی رقم کے نمائندے خطرات مول لینے سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنے اہداف کے حصول میں جارحانہ ہوتے ہیں، جس سے ورشب کے تمام نقطہ نظر کو ٹھیس پہنچتی۔ اس نے صرف سوچا کہ یہ اتنا بکھرا ہوا اور جذباتی کیوں ہے،
और क्या ये मुमकिन है कि अब जो चाहते हो उसे हासिल करके पुरसुकून सर रखें। एक ही वक्त में मैश वर्षभ की जिहत और सुस्त रवि से नाराज है, जिसे वो थकावट के तौर पर गलत बयान करता है। ऐसी सूरत में आग की अलामत बूर हो जाती है और साथ ही में दिलचस्पी खो देती है। ये मुमकिन है कि बुर्श के बारे में मैश की राय बदल जाए अगर वो महसूस करता है कि वो वर्षभ की तरफ से हिमायत और देखभाल करता है। ऐसा जोड़ा अपने हुकूक और जिम्मेदारियों को वाज़े तौर पर पहचान कर और उन पर अमल दरामद करके तसादुम को कम करने, तनाज़ात के हालात की तादाद को कम करने और बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम को बढ़ाने के काबिल होगा। बसूरत दीगर एक ही मसाइल पर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र, नीज़ मुफादात और मयार ज़िंदगी में तफावत, निशानियों और बिलाखिर उनकी अलहदगी के दरमियान फासिला बढ़ाने में मुआविन साबित होंगे। वर्षभ एक ज़मीनी अलामत है जबकि मैश आग की अलामत है। वर्षभ को तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम की ज़रूरत है जबकि मैश अपनी किस्मत पर काबू रखना चाहती है। वर्षभ बाज़ औक़ात मलकियत का हामिल हो सकता है जिसे अलग मैश बर्दाश्त नहीं करेगा। वर्षभ इतना ही हमागीर और आज़ादी को कबूल करने वाला होगा जितना कि मैश की ज़रूरत है, अगर मैश वर्षभ को कायल कर सके कि रिश्ता महफूज है और ये कि मैश कहीं नहीं जा रही। ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ शिराकतदार हैं। वर्षभ मैश की लापरवाही और अहमकाना हरकतों में कुछ इंतहाई ज़रूरी अक्ल का इजाफा करता है और मैश बदले में रिश्ते में कुछ मज़ा और आग लाती है जो सिर्फ वर्षभ के लिए एक मुस्बत चीज़ हो सकती है जो अपने ही रगों में फंस सकते हैं। बनाना मैश और बुर्ज की मुताबकत आम तौर पर दोनों अलामात के लिए फ़ायदेमंद है। अगरचे वो रिश्ते में नहीं हैं, ये दोनों रकम की निशानियां बेहतरीन साथी बनाती हैं। जिन्स से कत नज़र मैश इस रोमांस में मर्दाना खुसूसियात फराहम करता है जबकि वर्षभ मुअन्नस फराहम करता है। वर्षभ मैश की पैरवी करेगा लेकिन वर्षभ की गैर फ़ाली जज्बाती और किरदार की ताकत के साथ मिलकर है जो मैश को सेहतमंद तरीके से ज़मीन पर गामज़न करेगी। मुज़क्कर और मुअन्नस की ये कुतबियत तमाम बुनियादों पर मुहित है और जोड़े को वो तमाम अंदरूनी वसाइल फराहम करने देती है जिनकी उन्हें तवील मुद्दती ताल्लुकात के लिए ज़रूरत होती है। मैश और बुर्ज की मुताबकत अच्छी तरह से काम करती है क्योंकि मर्दाना और मुअन्नस की ये कुतबियत तमाम बुनियादों का इहाता करती है और जोड़े को वो तमाम अंदरूनी वसाइल हासिल करने में मदद देती है जिनकी उन्हें कामयाब तवील मुद्दती मोहब्बत के लिए ज़रूरत है उतारने के लिए। दूसरी तरफ वर्षभ बाकाना और ताक़ुब करना चाहता है। मैश चीज़ों को अंजाम देने के लिए बेचैन है और फूल और चॉकलेट के मरहले में वक्त ज़ाय करने का इम्कान नहीं है। ये मैश और बुर्ज की मुताबकत को दाएं पांव से शुरू करने के लिए मैश को वर्षभ की ज़िंदगी की रफ्तार को कम करना चाहिए। बरा करम अपना वक्त निकाल, ये इंतज़ार के काबिल होगा जब वर्षभ मैश को एक जिनसी मुस्कराहट और खुले बाजुओं से नवाजेगा। हर मैश को अपनी ज़िंदगी में एक चट्टान की ज़रूरत होती है, किसी ऐसे शख्स पर भरोसा करना जब मुश्किल वक्त हो। हर वर्षभ की ज़िंदगी में एक पटाखे की ज़रूरत होती है ताकि गर्मी को एक दर्जा हासिल किया जा सके। वर्षभ और मैश में आला दर्जे की मुताबकत है क्योंकि वो वही हैं जो एक दूसरे को चाहते हैं। याद रखें कि मैश हीरो है और वर्षभ जिंदगी के अफसानवी सफर में आशिक है। जब मैश और वर्षभ इकट्ठे होते हैं तो उनका अंजाम खुशगवार होने का काफी इम्कान होता है जब तक कि उनकी मुताबकत समझौता करने में हिचकिचाहट से टूट ना जाए। ये रिश्ता एक दूसरे के नुक्ता नज़र पर गौर करने और एक खुशगवार जरिया तलाश करने की सलाहियत से कहीं ज्यादा है। इस रिश्ते में पैसा एक मसला हो सकता है। आप उसे खर्च करने और इससे लुत्फ अंदोज होने को तरजीह देते हैं और वर्षभ उसे बरकरार रखने से ज्यादा लुत्फ अंदोज होता है। आप अपने साथी को सस्ती और किफ़ायत शियारी के तौर पर देखेंगे, हालांकि ये एक बार फिर अच्छी बात है अगर आप दरमियान में मिल सकते हैं। जैसा कि आपके रिश्ते के बहुत से पहलुओं के साथ आप अपने वर्षभ की तवील मुद्दती मंसूबाबंदी और इन्हिसार की तारीफ करेंगे, ये पार्टनर आपकी बुनियाद रखता है। बिल्कुल, अगरचे वो कैसे करते हैं इसके बारे में हर चीज आपको मायूस कर सकती है जब तक कि आप पीछे हटकर फवाइद को ना देखें। जबकि निडर मैश एक एक करके शानदार ख्यालात पैदा करती है, लेकिन तोते का तवाफ बड़ी मेहनत और एहतियात के साथ उन्हें वजूद में लाता है। इस ताल्लुक के मनफी पहलुओं में बुर्ज की सस्ती के साथ मैश की मायूसी और आग के निशान के जल्दी फैसलों पर दूसरा एतराज शामिल है। अगर वो एक दूसरे के इख्तिलाफात को बर्दाश्त करना सीख सकते हैं तो मुश्तरका वजह उन्हें ज़बरदस्त माली इनामात पेश कर सकती है। बाहमी फ़ायदा मंद ताल्लुकात का राज बाहमी सब्र है। बुर्ज जौज़ा इस हफ्ते
अपनी सेहत के बारे में मोहतात रहते हुए सेहत के किसी मामूली मसले के बारे में लापरवाही से काम न ले। अगर आपको कोई बीमारी है तो घर पर इलाज करने की बजाय किसी अच्छे डॉक्टर से फौरी इलाज करवाएं। बसूरत दीगर अगर चांद की वजह से दरमियानी मुद्दत में आपकी छोटी मोटी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नीज चौथे घर में चांद की मौजूदगी की वजह से शुरू में आपको इस हफ्ते अचानक बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल होगा। आप अपने पैसे को किसी बड़ी सरमायाकारी में लगाने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको हिदायत की जाती है कि जल्दबाजी में कोई सरमायाकारी ना करें, क्योंकि ये मुमकिन है कि अगर आप तमाम मुमकिना खतरात का जायजा नहीं लेते हैं तो मुस्तकबिल में आपको खतरात के इम्कानात बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते किसी घरेलू सामान या गाड़ी की खराबी की वजह से आपको किसी माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जब चांद छठे घर में दाखिल होगा और फिर 12वें घर में रुख करेगा तो इस वक्त खानदान में किसी भी सामान या गाड़ी के टूटने से आपको माली नुकसान हो सकता है। ऐसी हालत में शुरू से ही उन चीजों की देखभाल का ख्याल रखें, उनकी तरफ एहतियात करें। खास तौर पर गाड़ी चिल्लाते वक्त रफ्तार का ख्याल रखें, वरना गाड़ी के खराब होने का इम्कान है। ये हफ्ता कोई नया काम शुरू करने या किसी और जगह सरमायाकारी करने के लिए साजगार इम्कानात दिखा रहा है। ऐसी सूरत हाल में अगर आप इस दौरान सरमायाकारी करना शुरू करते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपके लिए अच्छा मुनाफा कमाना मुमकिन है। अगर आप किसी भी दाखिला इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो इस हफ्ते पहले की निस्बत ज्यादा एहतियात से मुताला करें, क्योंकि अतार्द आपकी रकम के साथ मुकाबले के छठे घर में होगा। ताहम इस दौरान आपको पढ़ाई के दरमियान अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ वक्त निकालना चाहिए। बसूरत दीगर खराब सेहत आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। लड़का और लड़की दोनों के लिए रकम का निशान मिथुन है। दोनों में बहुत सी चीजें मुश्तरक होंगी, इसलिए इसे एक अच्छा इम्तिजाज समझा जाता है। दोनों की जिंदगी की तरफ यकसा नुक्ता नजर होगा और एक दूसरे के लिए अबदी मोहब्बत का तजुर्बा करेंगे। दोनों अपने पार्टनर को वर्सेटाइल, दिलकश, मुतहर्रिक और दूसरे के लिए लामुतनाही मोहब्बत रखने वाले पाएंगे। दोनों आज़ाद होंगे, अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज होंगे और एक दूसरे की सोहबत से कभी बोर नहीं होंगे। दोनों एक ही मकासद के लिए काम करेंगे। मजमूई तौर पर इसे वैदिक इल्म नजूम में एक बेहतरीन निशानी मैच समझा जाता है। बुर्ज सरतान सेहत के लिहाज से यह हफ्ता मामूल से कदरे बेहतर रहने वाला है। खास तौर पर हफ्ते का आगाज अच्छा रहेगा क्योंकि इस वक्त तीसरे घर में चांद की मौजूदगी की वजह से आप खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत सेहतमंद पाएंगे। ताहम अपनी तफरी और पार्टी के औकात में शराब पीने से गुरेज करना चाहिए, वरना सेहत खराब हो सकती है। इस हफ्ते इस रकम के बाशिंदों को पैसे से मुताल्लिक कोई खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगरचे चौथे घर में चांद की आमदोरफ्त की वजह से मुताद्दिद ज़राए से माली फ़वाइद हासिल करने के इम्कानात होंगे, लेकिन उन्हें कोई भी सरमायाकारी करने से पहले हर चीज के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है। इसके बाद जब चांद 5वें घर में होगा तब आपको अपने बच्चे की तकसीम इनामात की तकरीब देखने का दावतनामा मिलेगा और ये आपके और खानदान के लिए खुशी का एहसास होगा। आपका बच्चा आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा और आप उनके जरिए अपने ख्वाबों को पूरा होते हुए देखेंगे। आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। इस हफ्ते जो लोग आपके काम की जगह पर आपके लिए रुकावटें पैदा कर रहे थे वो शर्मिंदा होंगे। इससे आपके हौसले के साथ साथ एतमाद भी बढ़ेगा। इसके अलावा आप अपने काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के काबिल हो जाएंगे। वो तलबा जो कोई भी मुकाबला जाती इम्तिहान दे रहे हैं और इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो वो इस हफ्ते अपनी हिम्मत और एतमाद की मदद से बेपनाह कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन आपको मुनासिब तफहीम को बरकरार रखने और अपने असातिज़ा और ग्रोवी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए जहन में रखना चाहिए। कैंसर के दो अफराद जो एक दूसरे से खुलूस दिल से मोहब्बत करते हैं एक ऐसा जज्बा शेयर करेंगे जिसका तजर्बा हम में से बहुत से लोगों को एक दूसरे को नई बुलंदियों तक पहुंचा कर कभी नहीं होता। ताहम उनकी मुश्तरका खुसूसियात में से बेहतरीन को चमकाने के लिए कुछ मुराआत की जरूरत है। अगरचे कैंसर रकम का बादशाह है और जीतना चाहता है, इस रिश्ते में कैंसर की मुताबकत का तकाजा है कि दूसरे पार्टनर को सिर्फ कभी कभी जीतने या इसकी क़ियादत करने की इजाज़त दी जाए। रिश्ते की मौरूसी मुसाबकत को मुनज़्ज़म करने के लिए ये मदद करता है अगर दोनों पार्टनर्स के अपने मुफादात और मशागिल हों जहां वो अपने साथी से कत नज़र एक्सल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर दोनों जोड़े एक ही सरगर्मियों में मुलव्वस हैं
مقابلہ پھر بھی واضح ہوگا۔ دونوں شراکت داروں کو کینسر اور کینسر کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی کے لیے اپنے اپنے طریقوں سے اپنی صنعتوں میں ترقی کرنا چاہیے۔ اس سے چیزوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے میں مدد ملے گی اور کم قابل قبول خود غرضی کو دور کر کے اس جذبے کے تمام مثبت پہلوؤں کو چمکنے کا موقع ملے گا۔ باقاعدگی سے ایڈجسٹمنٹ یہ دیکھتے ہوئے کہ اب دونوں موقع پر اچھی لڑائی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کسی اور کو پہنائے بغیر ایک دوسرے میں ایک آؤٹ لیٹ تلاش کر سکتے ہیں، یہ اعتدال میں ایک معقول انتظام ہے۔ آپ دونوں کو حوصلہ افزائی رکھنے کے لیے کسی حد تک مقابلے کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم اب دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے میں اچھا نہیں ہے، لہذا داؤ کو بڑھانے میں انتہائی احتیاط برتیں اور اب جو کچھ کہتے ہیں اس وقت کی گرمی میں ایسی چیز جس میں آپ میں سے کوئی بھی خاص طور پر ماہر نہیں ہے۔ آپ کو ایک طویل مدتی پاور شیئرنگ سسٹم کی ضرورت ہے جس میں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے اپنے فیصلوں اور انتخاب کے لیے جواب دہ ہوں اور دوسرے لوگوں کے ڈیولپمنٹس میں مداخلت نہ کرنے کی پالیسی رکھتے ہوں۔ اس کے بغیر آپ کا رشتہ بڑے پیمانے پر طاقت کی کشمکش میں بدل جائے گا، جو ظاہر ہے کہ غیر مؤثر ہے، اگرچہ آسمان کی حد ہے۔ اگر آپ اپنی توانائی کو ایک جوڑے کے طور پر اور ایک ٹیم کے طور پر اکٹھا کر سکتے ہیں تو کیسر و کیسر ایک انتہائی طاقتور میچ ہے۔ دوسری طرف آپ کی کمزوریاں، خاص طور پر آپ کے کنٹرول کی کمی، بے صبری، خطرہ مول لینے میں سکون، مشورہ قبول کرنے میں ناکامی اور عملتا کی کمی اور بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ نسبتاً معمول کے بحران کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اسے بری چیز کے طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ برج اسد اس ہفتے اعمال کا فائدہ دینے والا زحل چھٹے گھر پر اپنے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ اس ہفتے آپ کے کیریئر کے حوالے سے تناؤ کی وجہ سے آپ کو کسی معمولی بیماری کا شکار ہونا پڑ سکتا، اس لیے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے اور آرام کرنے کے لیے دوستوں اور کنبہ کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، اور اگر ممکن ہو تو آپ ان کے ساتھ مختصر سفر پر جانے کا بھی منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے کے وسط میں جب چاند آپ کی رقم کے نشان میں داخل ہوتا ہے تو اس کا مکمل پہلو 10ویں گھر پر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو کام پر اپنے اعلیٰ افسران کی طرف سے تعریف اور ترقی ملے گی۔ اس وجہ سے آپ کو مالیاتی اضافہ دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، تاہم یہ اضافہ اس وقت کے دوران آپ کے اخراجات میں اضافہ کر سکتا ہے، اس طرح آپ کے پیسے کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنے ہاتھوں پر قابو رکھیں اور اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کی کوششوں کو تیز کریں۔ اس ہفتے آپ کے نشان کے چوتھے گھر میں سورج کی موجودگی کی وجہ سے آپ اپنے پرانے دوستوں یا قریبی دوستوں کو دعوت دے سکتے ہیں، کیونکہ اس دوران آپ کے پاس اضافی توانائی ہوگی جو آپ کو کسی بھی پارٹی یا تقریب کا اہتمام کرنے کی تحریک دے گی۔ تاہم ایسا کچھ کرنے سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں سے ضرور بات کر لیں۔ وہ تاجر جو کاروباری سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے، انہیں اچھی خبر مل سکتی ہے کیونکہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہ کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس سے انہیں ترقی اور منافع دونوں مل سکتے ہیں۔ اگر آپ پچھلے کئی دنوں سے کسی غیر ملکی اسکول یا کالج میں داخلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو اس ہفتے اپنی تمام تر کوششیں لگانے کے بعد مزید انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی نامکمل دستاویز آپ کی محنت کو ضائع کر سکتی ہے۔ اسے ایک بہترین نشانی مجموعہ سمجھا جاتا ہے، ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی اور دونوں ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، پیار کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کے جذبات اور مزاج کو سمجھ سکیں گے۔ وہ ایک ساتھ مل کر ایک بہترین جوڑی بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ یہ نشانی امتزاج ایک پرجوش اور دیرپا تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس ہفتے اعمال کا فائدہ دینے والا زحل چھٹے گھر پر اپنے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ اس ہفتے آپ کے کیریئر کے حوالے سے تناؤ کی وجہ سے آپ کو کسی معمولی بیماری کا شکار ہونا پڑ سکتا، اس لیے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے اور آرام کرنے کے لیے دوستوں اور کنبہ کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، اور اگر ممکن ہو تو آپ ان کے ساتھ مختصر سفر پر جانے کا بھی منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے کے وسط میں جب چاند آپ کی رقم کے نشان میں داخل ہوتا ہے تو اس کا مکمل پہلو 10ویں گھر پر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو کام پر اپنے اعلیٰ افسران کی طرف سے تعریف اور ترقی ملے گی۔ اس وجہ سے آپ کو مالیاتی اضافہ دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، تاہم یہ اضافہ اس وقت کے دوران آپ کے اخراجات میں اضافہ کر سکتا ہے،
इस तरह आपके पैसे को बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में अपने हाथों पर काबू रखें और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की कोशिशों को तेज करें। इस हफ्ते आपके निशान के चौथे घर में सूरज की मौजूदगी की वजह से आप अपने पुराने दोस्तों या करीबी दोस्तों को दावत दे सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपके पास इजाफी तवानाई होगी जो आपको किसी भी पार्टी या तकरीब का एहतमाम करने की तहरीक देगी। ताहम ऐसा कुछ करने से पहले अपने घर के लोगों से जरूर बात कर लें। बुर्ज सुंबुला, तनाव का बड़ा रास्त असर आपकी सेहत को खराब कर सकता है और आप इस हफ्ते कुछ ऐसा ही महसूस करेंगे। खास तौर पर हफ्ते के वस्त में दूसरे और तीसरे घर में चांद की मौजूदगी और चूंकि ज़ाती ज़िंदगी में जारी खलल आपके बढ़ते हुए तनाव की बुनियादी वजह होगा, इसलिए ये आपकी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। जिन लोगों ने पहले कोई कर्ज या किसी किस्म का कर्ज लिया था, उन्हें इस हफ्ते कर्ज की रकम की अदायगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके पीछे बुनियादी वजह आपकी दौलत का जमा होना हो सकता है, इसलिए अब से अपनी दौलत जमा करने की कोशिश करें। इस हफ्ते अगर आप अपने दोस्तों या खानदान के साथ पिकनिक मनाने का इरादा कर रहे हैं तो हफ्ते का वक्त बेहतरीन वक्त है। इससे न सिर्फ आपको सुकून मिलेगा बल्कि ये आपको उनके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने में भी मदद देगा। मरीख आपके 10 घर में होगा और इसी वजह से आप फारिग वक्त में अपने मोबाइल पर वेब सीरीज देख सकते हैं और हो सकता है कि आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आपको पसंद ना करें। इससे उनके सामने आपकी तस्वीर भी मुतासिर होगी। तीसरे घर में अताद की मौजूदगी की वजह से तलबा को ये समझने की ज़रूरत होगी कि हफ्ते के आखिर में अपनी तालीम से मुतालिक हर काम को मुलतवी करना समझदार नहीं है, क्योंकि एक हफ्ता पलक झपकते ही गायब हो जाता है, जिसके बाद वक्त की कमी की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए अब सस्ती को अपने ऊपर हावी न होने दें और बकिया कामों को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करें। इल्म नजूम, कन्या और कन्या की मुताबकत से पता चलता है कि अताद के हकीकी और काबिल एहतराम मज़ामीन एक दूसरे के लिए एक ताकतवर सहारे और ठोस तहफ़्फ़ुज़ का काम करेंगे। वो एक दूसरे की आईनादार तस्वीरें हैं, फिर भी उनके इख्तिलाफ़ात उनकी मुनफरिद तालीम और जायचा से पैदा होते हैं। इब्तदाई तौर पर लोग पार्टनर की साजगार मलती जलती खुसूसियात पर तवज्जो मरकूज करते हैं। अगर एक टींडम एक मर्द और एक औरत पर मुश्तमिल है तो नजूमी जुड़वां उन्हें आसमान से एक जैसा पैगाम मालूम हो सकता है। ताहम अपने समेत हर एक और हर चीज पर तनकीद करने के उनके फितरी रुझान को देखते हुए वो आखिरकार अपने साथी में भी नागवार खुसूसियात देखेंगे। इसके बावजूद कन्या और कन्या की मुताबकत माकूल हद तक मजबूत रहती है, क्योंकि वो एक दूसरे की अहमियत को तस्लीम करते हैं और जो अच्छा काम करता है इसे तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वो दूसरे के मुआशरे में आराम से रहते हैं। वो दोनों पुरसुकून और समझदार होते हैं, अक्ली हिकमत अमली के मालिक होते हैं, सोच अमलियत और काबिल रश्क मेहनत। कन्या और कन्या की मुताबकत के जायचा के जरिया पेश गोई की गई ज्यादा कामयाब शिराकत में वो जोड़े शामिल होते हैं जो आतो जवान होते हैं और इसलिए जल्द मुवाफिकत करते हैं। आइन में उम्र का काफी फर्क होता है। ऐसी सूरत में जमीनी उनसर का बूढ़ा ज्यादा तजर्बाकार नुमाइंदा उनकी शादी की क़ियादत करेगा। कामयाब मुताबकत काम पर कन्या और कन्या के दरमियान मुताबकत मस्बत नताइज फराहम करती है। उनकी तारीफ इस्तिकामत और अच्छी मंसूबाबंदी की सलाहियत से होती है। अगर मरकरी का एक नुमाइंदा कामयाबी हासिल करता है तो अतार्द के 2 नुमाइंदे आसानी से अपने इनामात को दुगना कर सकते हैं। किसी दूसरे जहन को हिदायत देने के उनके रुझान की वजह से पैदा होने वाले मुमकिना तनाज़ात से बचने के लिए उन्हें पहले इस बात पर मुत्तफ़िक होना चाहिए कि उनकी टीम की क़ियादत कौन करेगा। दोस्ती में कन्या और कन्या की मुताबकत काफ़ी ज़्यादा होती है। दोनों ख़वातीन और मर्द के फ़र्क और हम जिन्स के इम्तिजाज में ये निशान इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये मैदान से कत नज़र पार्टनर के लिए बड़ी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो सरपरस्ती, तशवीश और अपने प्यारे की फलाह व बहबूद के लिए हकीकी तशवीश जाहिर करेगा, जिनके साथ नाकिस कन्या की सरमायाकारी नहीं की जाएगी। लिहाजा अगर आप उसके दोस्तों के हल्के तक रसाई हासिल करने के काबिल थे तो इसका मतलब है कि आप इसकी रूह को ज़ख़ीरा करने के काबिल थे और वो वाकई आपकी तारीफ करती है। दोस्ती में ज़मीनी उनसर का निशान इंतहाई वफादार है, हमेशा बचाव के लिए आता है और कंधा फराहम करेगा। ये ताल्लुकात ज़िंदगी भर बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं और मुमकिना तौर पर कुंबा के अफराद के साथ राब्ते में तरक्की करते हैं। मज़ीद बरा
मुफाहमत एक पुरसुकून और पुरअमन अमल है। ज़मीनी निशानियां पुरअमन सिफारती बातचीत की वकालत करती हैं, जिसमें हर शरीक बारी बारी अपने दलाइल और जवाबी दलाइल पेश करता है। रिश्ते में कन्हैया के साथ कन्हैया के दरमियान मुताबकत बेहतरीन है, क्योंकि रकम की तगैर पजीर अलामात के लिए उनकी मुश्तरका वाबस्तगी है। ये अफराद की शनाख्त बदलने के काबिल, मुआफ़क़त पजीर और तेज़ी से अपने माहौल के मुताबिक करने के काबिल है। जब वो किसी दूसरे के लिए नर्म जज्बात से मुतासिर होते हैं तो वो इसे कबूल करने के काबिल होते हैं। यही खसलत अफराद को ऐसे रिश्तों को बरकरार रखने के काबिल बनाती है जो नाखुशगवार हों या रूहानी वाबस्तगी की कमी के बावजूद मादी तौर पर फ़ायदेमंद हो। वैसे ये बताता है कि क्यों बहुत सी कन्वारियां मोहब्बत की बजाय सहूलत के लिए शादी करती हैं। बुर्ज मीज़ान, सेहत के लिहाज से इस हफ्ते का आगाज अच्छा रहेगा, क्योंकि छठे घर पर चांद के शुबा होने की वजह से इस दौरान आपकी सेहत में मुस्बत तब्दीलियां आएंगी। नतीजे के तौर पर आप इस मुद्दत के दौरान जिम में शामिल होने का फैसला कर सकते हैं। मजीद ये कि 12 में चांद की आमदोरफ्त और फिर घर अव्वल में और फिर दोबारा माली पक्षा में मुंतकिली आपको इस हफ्ते के दौरान कोई भी मालियाती फैसला करते वक्त मुश्किलात पर काबू पाने में मदद देगी, जिसकी मदद से आप कोई भी फैसला कर सकेंगे। सरमायाकारी से मुतालिक आपके लिए अच्छी रकम कमाना भी मुमकिन है। अगर घर के बुजुर्ग हैं तो इस हफ्ते उनसे अनोखे मुतालिबात पूछकर और उनसे आपकी ज़रूरत से ज़्यादा की तवक्को रखकर परेशान हो सकते हैं। इसकी वजह से आपकी ज़ाती ज़िंदगी न सिर्फ तनाव का शिकार होगी बल्कि इसके मनफी असरात आपकी पेशा वराना ज़िंदगी को भी मुतासिर कर सकते हैं। इस हफ्ते ज़ोहल 4th घर में बरा रास्त और 7वें घर में इसका रुख है, जिसकी वजह से ताजिरों को किसी भी तिजारती/कानूनी दस्तावेज़ात को गहराई से समझे और उन्हें सही तरीके से पढ़े बगैर दस्तखत करने से गुरेज करना पड़ेगा, वरना आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए ऐसी दस्तावेज़ात से लापरवाह ना हो। इस हफ्ते बहुत से तलबा को अपने कुछ मज़ामीन को समझने में मुश्किल पेश आएगी, ताहम उसके बावजूद वो इससे कामयाबी हासिल करके अच्छे नताइज हासिल कर सकेंगे। ऐसी सूरत हाल में उन्हें अपने मकासद के लिए मुसलसल कोशिश और चुप न रहने की ज़रूरत होगी। जब बात लिबरा और लिबरा की मुताबकत की हो तो उनके दरमियान काफ़ी तनाव पाया जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे की इब्तिदाई फितरत से बेखबर है। ये इतना ज़्यादा भरोसे की बात नहीं है, लेकिन जब गुबार जिम जाए तो एक हो जाता है। शर्मीली इंट्रोवर्टेड लिबरा को समझाने का कोई तरीका नहीं है कि लिबरा शफाफियत के बारे में इतना अटल क्यों है। ये और भी वाज़े नहीं है कि उनके रिश्ते को इतनी तवज्जो की ज़रूरत क्यों है। उनका लिबरा साथी हर इस शख्स के साथ छेड़छाड़ क्यों करता है जो मुहज्जिब नजर आता है। दूसरी तरफ लिब्रा को लिब्रा के मिजाज पर भरोसा नहीं है और वो अपने साथी के इजहार के खौफ को इस तरह देखता है जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, जैसे करियर के इंतखाब और आमदनी। ये उन्हें एक तवील मुद्दत के लिए माकूल हद तक अच्छी पोजीशन में रख सकता है, ख़ास तौर पर अगर वो मुश्तरका पेशा वराना मुफादात या किसी भी किस्म के सीखने या तरक्की में एक दूसरे की मदद करने की ख्वाहिश रखते हैं। यहाँ तक कि अगर वो जज्बाती राब्ते पर बात करते हैं तो वो एक वक्त के लिए आंख से देखते रहेंगे। ये दोनों अक्ली फैसला साजी और समझदारी से काम लेते हैं, ताहम सच्चे जज्बात बिलाखिर उन शराकतदारों में से एक में जाहिर होंगे और वो समझ सकते हैं कि अब उनके दरमियान बातचीत मुमकिन नहीं है। जब इनमें से एक को किसी ज़ाती मसले का सामना होता है तो दूसरा मुंजमद होता है, हमदर्दी या कुर्बत की तमाम सलाहियत खो देता है। यहाँ मसला यह है कि उनका रिश्ता उनके ज़हनी ताल्लुक़ पर मबनी है, जो उन्हें एक दूसरे से हकीकी मोहब्बत करने और नाजुक वक्त पर मेहरबान अल्फाज पेश करने से रोकता है। तस्वीर मज़ीद बड़ा वो थिएटर और फनकाराना इजहार की तमाम शक्लों से लुत्फ़ अंदोज होते हैं। दोनों निशानियां अमलीत और खुशी की कदर करती हैं, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे की तकमील करती हैं। लिब्रा की तवज्जो और सिफारतकारी की कदर लिब्रा के ज़रिया होती है, और जब लिब्रा अपना रास्ता नहीं पाता है तो लिब्रा सालसी कर सकता है। लिब्रा हुक्म के साथ लिब्रा के जुनून और उसके साथ मिलने वाले मादी इनामात की तारीफ करता है। मज़ीद बरा लिब्रा और लिब्रा एक दलील में मुखालिफ नुक्ता नज़र पर गौर करने के लिए तैयार और काबिल हैं, और वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसलों तक पहुँचने के लिए ताउन करते। ताहम जब जज्बात की बात आती है तो ये दोनों आपस में टकराएंगे। उनके ताल्लुकात सिर्फ इस वजह से ख़त्म हो सकते हैं कि उन्हें अपने जज्बात को बातचीत करने में दुश्वारी होती है। कोई भी इस लिब्रा और लिब्रा के रिश्ते में किसी खामी को दूर नहीं करेगा। हर जोड़े में इख्तिलाफ होता है
और अगर स्लैश जब लिबुरा और लिबुरा इस मकाम पर पहुंच जाएं तो नतीजा गड़बड़ हो जाएगा। लिबुरा हीरा फेरी और गैर फ़ाल जारहाना हो जाएगा, जबकि लिबुरा काफ़ी तनकीदी और फैसला कुन हो जाएगा। अगर वो एक दूसरे रिश्ते के लिए काफ़ी एहतराम रखते हैं तो वो मसाइल को अक़ली तौर पर हल करेंगे। लिबुरा का ताल्लुक तभी कामयाब हो सकता है जब दोनों फरीक एक दूसरे से सीखने के लिए तैयार हों। उनका जज्बाती ताल्लुक कमज़ोर है क्योंकि वो एक गैर मामूली बकाए बाहमी में है। इन दोनों से ज़्यादा जज्बाती अलहदगी का शिकार कोई जोड़ा नहीं है, जिसके नतीजे में दोनों तरफ बहुत ज़्यादा अदम इत्मीनान हो सकता है। कोई भी साथी रिश्ता ख़त्म करने के काबिल नहीं है। वीनस लिबुरा और सैयारा का हाकिम है जो चांद के साथ साथ हमारे जज्बात की नुमाइंदगी करता है। जज्बात की कदर और इस्तेहकाम जो लिबुरा को दरियाफ्त करना ज़रूरी है। जब अक़ली लिबुरा तस्वीर में दाखिल होता है तो गायब हो जाता है। बुर्ज अक़रब, इस हफ्ते ज़ोहल आपके तीसरे घर में मौजूद होगा, इसलिए यकीन के एतबार से ये वक्त आपके लिए जज्बाती तौर पर अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप अपनी ज़िंदगी के बहुत से बड़े फैसलों के बारे में उलझन की हालत में नजर आएंगे। इससे आपका ज़हनी तनाव भी बढ़ेगा। नीज़ चांद के 11वें घर से 12वें घर में मुंतकिल होने की वजह से आपको समझना होगा कि दूसरों के सामने अपनी इस्तेताअत से ज़्यादा खर्च करना काफ़ी अहमकाना फैसला। इस बात को तस्लीम करें और ऐसे कामों से गुरेज करें, तभी आप अपने मुस्तकबिल के लिए काफ़ी बचत कर सकेंगे। वक्त के वस्त के बाद चांद आपके पहले घर में मुंतकिल होगा जहां ये सूरज के साथ मिल जाएगा। सूरज चांद के बैठने की वजह से आप इस हफ्ते अपने इर्द गिर्द के लोगों के रवैये की वजह से थोड़ा परेशान महसूस करेंगे, ख़ास तौर पर ख़ानदान के अफराद। इससे आपका ज़हनी तनाव भी बढ़ेगा, साथ ही आप उनके साथ झगड़े में पड़ सकते हैं। ये मुमकिन है कि आपको काम की जगह पर अचानक कुछ अहम किरदार और जिम्मेदारियां संभालने के लिए कहा जाए, जिसमें आप इस हफ्ते मुकम्मल तौर पर नाकाम रहेंगे। ऐसी सूरत हाल में आप कुछ ऐसे फैसले जोश में ले सकते हैं जो आपको मुस्तकबिल में मनफी नताइज दे सकते हैं। इस हफ्ते पहले घर में अतार्द की मौजूदगी की वजह से आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हालात मामूल पर आते नजर आएंगे। आपका ज़हन पढ़ने लिखने में मशगूल रहेगा। इससे आपको अपनी उलझनों से छुटकारा मिल जाएगा और उसके नतीजे में आप अपने इम्तिहान में कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो मुताबकत के मामले में दोनों बिच्छू को अपने रिश्ते में सुकून महसूस करना चाहिए, क्योंकि वो एक जैसी खुसूसियात रखते हैं। नुक्ता नज़र और दिलचस्पियां। पानी के उनसर से उनका ताल्लुक उन्हें अंदरूनी सुकून, राजदारी और मकसदियत के गहरे एहसास से नवाजता है। एक तेज धारा अपने रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को बखेरने और अपनी लहरों से हल्का हल्का करने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ एक ही रकम के दो नुमाइंदे तेजी से एक दूसरे के लिए वाबस्तगी पैदा करेंगे। उनकी मुमासलत के नतीजे में इम्कान है कि वो एक दूसरे के मुआशरे में बूर हो जाएंगे। यहाँ सूरत हाल को बिच्छू की गैर मुतवक्के और पुरस्रारियत से बचाया जाता है, जो हमेशा उनके शिराकतदारों की बाहमी दिलचस्पी को मुतासिर करती है। जब बात स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो की मुताबकत की हो तो स्कॉर्पियो पर फौरी तौर पर दो आसमानी अजसाम की हुक्मरानी होती है, मरीख जंग का देवता और प्लूटो ख्वाहिशात का देवता। इस तरह ये निशान एक मजबूत इरादे वाले फर्द की अलामत है जो हर चीज को भरने और कंट्रोल करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। ये सच है कि वो पर्दे के पीछे से ऐसा करता है, पहलों से क़ियादत करने को तरजीह देता है। स्कॉर्पियो अपने ज़ाहिरी मुज़ाहिर के लिए नहीं जाना जाता, क्योंकि वो अपनी हिफाजत से मुतालिक है। वो सतह पर पुरएतिमाद और मजबूत दिखाई देता है, लेकिन सख्त चिटिनस्तह के नीचे एक कमज़ोर जज्बाती गाये है जिसकी वो मुसलसल हिफाजत करता है, जिससे वो लोगों पर एतमाद नहीं करता। चूंकि इसका बुनियादी मुहर्रिक हुकूमत करने की ख्वाहिश है, फितरी सवाल यह है कि क्या एक ही तख्त के लिए लड़ने के ख्वाहिशमंद दो अफराद आपस में मिल जाएंगे। पानी के निशानात एक लतीफ़ विजदान के हामिल होते हैं और उसके नतीजे में इनमें खुद का शदीद एहसास होता है। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के दरमियान मुताबकत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनका अपनी रकम के मुताबिक अपने के साथ ख़ास ताल्लुक़ है। उनके सोचने के अमल सूफियाना हैं और वो अक्सर बातिनी इल्म, नजूम और जादू के ज़रिए बाकाए जाते हैं। वो दूसरों में ईमानदारी और खुलेपन की कदर करते हैं, हालांकि वो उन मयारात पर पूरा उतरने में जल्दी नहीं करते। अपने मकासद को पूरा करने के लिए अक्सर हीरा फेरी का सहारा लेते हैं। और जबकि स्कॉर्पियोज आमतौर पर दूसरों पर तनकीद करने और बहस करने से लुत्फ अंदोज होते हैं, वो अपनी नज़रों में भी याद रखेंगे
उनकी बढ़ी हुई अना और हद से ज्यादा खुद एतमादी उन्हें तमीरी तनकीद को समझने की इजाज़त नहीं देती है। वो आतो लाजिम व मलजूम हम ख्याल अफराद बन जाते हैं या खतरनाक दुश्मन बन जाते हैं। वाक़यात के कोर्स का तयन निशानी के नुमाइंदों के पैदाइशी चार्ट और उनकी ज़ाती जायचा से होता है। पहले वर्जन में ये एक शानदार क्रिश्माती जोड़ा होगा जो तारीफ और खौफ दोनों को मुतासिर करता है। एक स्कॉर्पियो जंगजू है और दो पहले से ही एक मजबूत मुअस्सर फौज हैं जो कुछ भी करने के काबिल हैं। चूंकि क़यादत का मसला उन पर मुसलसल छा जाएगा, इसलिए शिराकतदारों को मुत्तफिक होना पड़ेगा। दोनों बिच्छू एक दूसरे के सामने झुकने के बजाय बराबरी का ऐलान करेंगे। ताहम ये मुमकिन है अगर वो अपनी शिराकत की कदर को पहचानें, एक ही समत में देखें और एक ही मकसद की तरफ काम करें। बुर्ज कौस, अगर आप खराब सेहत के शिकार थे तो इस हफ्ते के वस्त में 6 घर पर चांद का रुख होगा। आपको ऐसी चीजों और सरगर्मियों पर काम करने की जरूरत होगी जो आपकी सेहत को बेहतर बना सके। इसलिए अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए अपनी बुरी आदतों को बेहतर बनाएं और अपने आप को ज्यादा मसालादार खानों से दूर रखें, जबकि अच्छे और भरपूर खाने का इस्तेमाल करें। इस हफ्ते आपके घर पर मरीख का रुख बताता है कि अगर आप दूसरों के नक्श कदम पर चलकर कोई सरमायाकारी करते हैं तो माशी नुकसान तकरीबन यकीनी है। इसलिए दूसरों के कहने पर अपना पैसा कहीं भी लगाने से गुरेज करें और समझदारी से काम लें। हफ्ता के वस्त में 11 घर में चांद की मौजूदगी की वजह से आपकी घरेलू जिंदगी में खुशी, सुकून और खुशहाली आएगी, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली के साथ किसी मजहबी मकाम या किसी रिश्तेदार के मकाम पर जाने का मंसूबा बना सकते हैं। इस हफ्ते आपको कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने या किसी के साथ कारोबारी शिराकतदारी करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि सैयारों के इम्तिजाज के मुताबिक आप मुस्तकबिल के बारे में सोचे बगैर ऐसा फैसला कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको मुस्तकबिल में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस हफ्ते दीगर सैयारों के साथ मरीख की मौजूदगी की वजह से तलबा के लिए साजगार नताइज सामने आएंगे, इसलिए आला तालीम हासिल करने वाले अफराद को अच्छे नताइज मिलेंगे। इस दौरान आपको किसी मारूफ इदारे में दाखिले की खुशखबरी भी मिल सकती है। ऐसी सूरत हाल में खास तौर पर वो लोग जो तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने के रोशन इम्कानात हैं। इस निशानी के नुमाइंदे अपने और अपने पेशा की तलाश में रहते हैं। यही वजह है कि वो इल्म को खा जाते हैं और सीखने के लिए बेचैन रहते हैं। कुछ ना फलसफियाना फिक्र उन्हें मुश्तरी अता करती है। एक रहनुमा सैयारा सागेटियंस बहुत ज्यादा खतरात मोल लेते हैं और नियापन के हुसूल में मुतअद्दिद धोखादही में मुलव्वस होते हैं, और उसके नतीजे में उनका आसमानी सरपरस्त उन्हें बेपनाह किस्मत से नवाजता है। इस तरह वो सबको दूसरे जायचा के नुमाइंदों के मुकाबले में जिंदगी में आसान पेश किया जाता है। खुश किस्मत हैं और आने वाले मसाइल से बेखबर रहने की कोशिश करते हैं। एक तरफ ये काबिल तारीफ है, कोई रुकावट उन्हें रोक नहीं सकती। दूसरी तरफ इस तरह की शख्सियत की खुसूसियत शिरखारीत और गैर जिम्मेदारी का बाइस बनती है, क्योंकि वो किसी भी चीज से दूर रहने के आदी होते हैं और अक्सर किसी भी चीज का जवाब देने से इनकार कर देते हैं। दुख और दुख की मुताबकत के दायरे में वो जल्द ही किसी दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं और उनका पुरजोश ताल्लुक तेजी से तैयार हो सकता है। एक मुतगय्यर निशान के नुमाइंदे के तौर पर वो आसानी से मुआफ़क़त इख्तियार कर लेंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए अपने रवैयों और एहसासात को भी बदलेंगे। ये हमेशा एक तवील मुद्दती ताल्लुकात के इम्कान का मतलब नहीं है, क्योंकि उनको एक दूसरे के साथ बांधने के लिए गुलू के तौर पर काम करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे की सोहबत से लुत्फ अंदोज नहीं होंगे। एक साथ होने पर इश्तिराक करने के लिए बेशुमार चीजें दरियाफ्त करेंगे और एक ही सफर के दौरान बच्चों की तरह हंसेंगे। अगर वो मुश्तरी से मुतासरा दो अफराद की हकीकी खुशी को मिलकर दरियाफ्त करते हैं तो वो बाकी सब में दिलचस्पी खो सकते हैं और अपनी बकिया जिंदगी के सफर में उन्हें साथ रखने के लिए जरूरी तवाज़ुन तलाश कर सकते हैं। सेजिटियस और सेजिटियस मुताबकत यहाँ अहम इस्तिलाह है तौसी के, क्योंकि दोनों जोड़े इल्म के हुसूल को सराहते हैं, इसलिए वो अपने ताल्लुकात में दिलचस्प तसव्वुरात लाएंगे। उन्हें ज़रूरत से ज्यादा लज़्ज़तों के बारे में होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी पेटू पिन सिर्फ उनकी तवज्जो हटाने का काम करेगी। उनका करिश्मा और दिलकशी उन्हें न सिर्फ एक दूसरे के लिए बल्कि पूरे हुजूम के लिए पसंद करती है। सेजिटियस एक आग का निशान है। वो मुसलसल पहुंच रहे हैं और एक साथ जिंदगी का तजर्बा कर रहे हैं,
वो सफ़र की किताबों में सिर्फ मंजिलों के बारे में पढ़ने से ज़्यादा सफ़र करना पसंद करते हैं। सुबुकदोश होने वाले और मिलनसार होते हुए बहुत से सोचने से पहले बोलने की गलती करते हैं, खुद को एक मुश्किल समाजी सूरत-ए-हाल में डालते हैं। ये दोनों अफराद नई कोशिशें करना पसंद करते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी उनको देखने का अज़्म नहीं रखता। दोनों अगली दिलचस्प तरक्की की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हैं। सेजिटेरियस और सेजिटेरियस की मुताबकत को फायदामंद समझा जाता है, क्योंकि दोनों मुतहर्रिक चेयर लीडर्स में कोई चीज मुश्तरक नहीं है। दो आग जो एक में मिल जाती हैं, तासुरात और एहसासात की फरावानी फराहम करती हैं। वो मुसलसल नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं और जोश के साथ उन पर अमल पैरा है। दोनों को आराम की जरूरत है और वो जिस्मानी लज्जत के लिए पेटू हैं, जिसका मतलब है कि उनके इत्तेहाद से खाने से लेकर अल्कोहल तक मुताद्दिद किस्म के इन्हिसार पैदा होने का खतरा होता। पहले ये बयान किया गया था कि दुख की जिम्मेदारी नापसंदीदा थी। ये हकीकत उन्हें मुश्किल पेश करेगी, क्योंकि गाइड जोड़ी में होना जरूरी है। इस तरह ये फायदामंद होगा अगर उनमें से एक उम्र समाजी हैसियत में बड़ा हो, जिंदगी के तजुर्बे में ज्यादा समझदार हो और दूसरों के लिए बतौर सरपरस्त काम करे। बुर्ज जद्दी, इस हफ्ते के शुरू में खुशकिस्मती की वजह से आपकी सेहत में बेहतरी आएगी। इसके बावजूद आखिर में 12 घर में चांद की मौजूदगी की वजह से आपको हर किस्म के लंबे सफरों से गुरेज करना पड़ेगा, और अगर सफर की जरूरत है तो सफर शुरू करने से पहले आपका तिब्बी मुआयना कराना होगा। इस हफ्ते 10वीं घर में चांद की मौजूदगी की वजह से इन लोगों को मदद मिलेगी जो मार्केटिंग, सील्स वगैरह के शुबों से वाबस्ता हैं, अपना हदफ वक्त पर पूरा कर सकेंगे। उन्हें पैसे कमाने के अच्छे मौके मिलेंगे। इसके अलावा आमदनी में भी कुछ इजाफा होगा और उनकी किस्मत भी साजगार होगी। लिहाजा उन्हें मशवरा दिया जाता है कि इस लम्हे को ज़ाय न होने दें और उससे भरपूर लुत्फ उठाएं। चौथे घर पर अचानक चांद के पहलू की वजह से इस हफ्ते घर में मेहमानों की आमद मुतवक्के है, जिससे खानदानी माहौल में सुकून रहेगा। इस दौरान आपको घर में लजीज खाने का मौका मिलेगा, साथ ही शाम का ज्यादातर वक्त मेहमानों के साथ गुजरेगा। मुलाजमत पेशा अफराद को इस हफ्ते दफ्तर में गुपशिप करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि जोहल आपके निशान के पहले घर को मुतासिर करेगा, इसलिए ऐसे काम करने से गुरेज करें। दूसरी सूरत में आप अपने आप को काम की जगह की सियासत में फंस सकते हैं, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। अगर आप सियासत या समाजी खिदमत पढ़ रहे हैं तो यह वक्त आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तलबा के पास भी बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करने का रोशन मौका है। मकर जोहल की हुक्मरानी है। यह सैयारा बिक्री में समाजी हैसियत और बाइख्तियार होने की ख्वाहिश पैदा करने का जिम्मेदार है। जब दो कैरियर के जहन रखने वाले मिलकर मिलते हैं तो वो अच्छी तरह बातचीत कर सकते हैं और एक साथ बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मोहब्बत करने की सलाहियत के बावजूद उन्हें जज्बाती तौर पर आपस में जुड़ना मुश्किल लगता है। मकर जमीन की अलामत है और ये मकामी लोग मादी अशिया में दिलचस्पी रखते हैं जो बुलंद समाजी हैसियत को पेश करते हैं। वो कामयाब हैं और अपनी ख्वाहिश के हुसूल के लिए सख्त मेहनत करने में यकीन रखते हैं। वो अपनी मेहनत का फल दिखाने से बाज नहीं आएंगे। वो जिम्मेदारियों में तरक्की करते हैं और नीरस सरगर्मियां उनके रोजमर्रा के मामूलात का एक हिस्सा हैं, और इस वजह से दो मकर पार्टनर्स को कुछ तफरीही सरगर्मियां तलाश करनी होंगी जिनसे वो अपने दुनियावी निज़ाम अलोकात से बचने के लिए एक साथ लुत्फ अंदोज हो सकें। कैप्रिनस कार्डनल अलामात हैं, जिसका मतलब है कि वो नई चीजें शुरू करना पसंद करते हैं और उन्हें आखिर तक जारी रखते हैं। एक साथ ये जोड़ा अपना वक्त और पैसा अमली एप्लीकेशंस पर खर्च करना चाहेंगे और ठोस नताइज हासिल करना चाहेंगे। वो अच्छी तरह से मरबूत, मुनज़्ज़म, मकसद पर मबनी हैं और एक साथ मिलकर एक मजबूत टीम बनाते हैं। एक टीम में दो बकरियों का मतलब तवानाई, अज़ाइम और इस्तिकामत दुगना है। वो दोनों वर्काहुलुक हैं और कोई भी चीज उन्हें अजीम तरीन अहदाफ के हुसूल से नहीं रोकती। ताहम अगर कभी दो बकरियों के सींग बंद हो जाएं तो ये दूसरे साथी कारकुनों के लिए एक गैर आरामदेह माहौल पैदा कर सकता है, क्योंकि दो बकरियों के दरमियान झगड़े को हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। वो ताकत और इख्तियार की जंग में भी दाखिल हो सकते हैं जो देखने के काबिल नहीं होगी, लेकिन अगर वो अपने कामों को अच्छी तरह से तकसीम करते हैं और मुनासिब चैनल्स के जरिए बातचीत करते हैं तो ये दोनों एक ऐसी ख्वाबों की टीम बनाएंगे जिससे हर कोई रश्क करेगा। मकर के बाशिंदे जब अवामी मोहब्बत के इजहार की बात करते हैं तो वो बेचैन होते हैं
اور وہ اتنے پر اعتماد نہیں ہوتے کہ وہ اپنے پیار کا اظہار کر سکیں تو نجی میں کچلنا، لہذا جب یہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ کسی دوست کی طرف سے تھوڑا سا دھکا حوصلہ افزائی کے چند الفاظ چال کر سکتے ہیں۔ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو باہمی احترام میں شریک ہوتے ہیں، تاہم ایک رشتہ صرف احترام سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ ان دونوں میں جذبات کے اظہار اور بات چیت کی کمی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ دیگر پیچیدگیوں کے ساتھ عدم اعتماد کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کسی بات چیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے صرف ایک نظر ڈالنا پڑتا ہے کہ ان کا ساتھی کیا چاہتا ہے، کم از کم وہ یہی سوچتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بات چیت کرنا سیکھ لے تو وہ ایک پوری نئی دنیا دریافت کر سکتے ہیں جو ان کی تلاش کا انتظار کر رہی ہے، اگرچہ وہ دونوں مکر ہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو بکری کا زیادہ ایماندار اور اعلیٰ ورژن سمجھے گا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کے پاس برتری کمپلیکس ہے، ان کے لیے سب کچھ مقابلہ ہے۔ رشتہ میں بھی وہ ایک دوسرے کے لیے بہتر ہونے کے بجائے دوسرے سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح کی شخصیت کی خصوصیات زیادہ تر رشتوں میں مکر کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہیں۔ برج دلو، اس ہفتے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا وقت ان چیزوں پر گزاریں جو آپ کو سب سے زیادہ خوشی محسوس کر سکیں، آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ اس سے آپ کو ذہنی تناؤ سے کافی حد تک دور رہنے میں مدد ملے گی۔ شروع میں دوسرے گھر پر چاند کا پہلو اور اس کی وجہ سے آپ کو گھر میں خاندان کے کسی فرد کی صحت پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے آپ کے مالی حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے خاندان میں آپ کی حیثیت بڑھے گی۔ ساتھ ہی آپ خاندان کے افراد کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کو اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے، چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ خاص کرنا پڑے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہی آپ ان کے دماغ میں چل رہی باتوں کو سمجھ سکیں گے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے۔ ہفتے کے وسط میں 9 گھر میں چاند کی موجودگی اور تیسرے گھر میں اس کا پہلو ظاہر کرتا ہے کہ اس عرصے کے دوران آپ کے بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں اور ساتھیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کچھ تنازعات پیدا ہونے کا امکان ہے، جس کا اثر آپ کے ذہن میں منفیت لے آئے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنے کیریئر کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی کرنے میں ناکام رہیں گے۔ اگر اس ہفتے آپ کے کیریئر کا انتخاب کرنا ہے تو آپ کو کسی بھی قسم کے دباؤ میں آنے اور اس سے متعلق کوئی بھی فیصلہ لینے سے گریز کرنا ہوگا، کیونکہ اس پورے ہفتے میں عطارد آپ کے 10 گھر میں ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی ایسا فیصلہ نہ کریں جس کے بارے میں آپ کا دل اور دماغ متفق نہ ہو۔ کوبب لوگوں کی مدد کرنا اور سماجی تبدیلی پر غور کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ جوڑی اتنی اچھی طرح سے ملتی ہے کہ آس پاس کے لوگ حسد میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کی بہت سی مشترکہ دلچسپیاں ہیں، جیسے ترقی پسند اور جدید خیالات پر گفتگو کرنا اور موجودہ واقعات کی پیروی کرنا۔ کوبب سیاروں زحل اور یورینس کے تحت آتا ہے۔ یورینس نئے خیالات کو کنٹرول کرتا ہے، جو ایکورس کی عقل کو بہت سنکی اور انتہا پسند بناتا ہے۔ زحل پانی بردار کو ذمہ داری، کام کی اخلاقیات اور استقامت دیتا ہے۔ یہ خصوصیات اس مطابقت کو انتہائی قابل احترام اور نتیجہ خیز بناتی ہے۔ ایکویریس ایک ہوا کا نشان ہے، اس لیے وہ اپنی فکری صلاحیتوں کے ساتھ مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان پر سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ یہ کوبب اور کوبب کی مطابقت کو خود اعتمادی اور خود اعتمادی بھی بناتا ہے۔ ان کی گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جذباتی قربت پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جذباتی طور پر الگ ہو سکتے ہیں۔ کوبب ایک مقررہ نشانی ہے۔ یہ اس میچ کو خوفناک طور پر ضدی لیکن انتہائی نتیجہ خیز بنا دیتا ہے۔ وہ دونوں تخلیقی خیالات کے ساتھ آتے ہیں اور مشترکہ مقصد میں اپنے ساتھی کے تعاون کا احترام کریں گے۔ بعض اوقات یہ دونوں مضبوط آرا کی وجہ سے جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں، لیکن وہ ان معمولی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ایکویریس اور ایکویریس کی مطابقت کی بہترین خصوصیت زندگی کے مختلف شعبوں کی وجہ سے نئے خیالات کو میز پر لانے کی صلاحیت ہے۔ افراد اور بصیرت کے حامل افراد کے طور پر یہ جوڑی روشن اختراعات اور ثقافتی اصلاحات کے لیے پہل کرتی ہے۔ ایکورس اور ایکورس کاروباری مطابقت اپنے کاروبار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تبدیلی لانے کے بارے میں ہے۔ وہ محنتی ہیں اور دباؤ میں بہترین کام کرتے ہیں۔ وہ اچھے ساتھی بنائیں گے جو کام کے بعد موجودہ واقعات اور ترقی پسند خیالات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔
وہ جدید منصوبوں سے بھرے ہوں گے اور ایک دوسرے کو اپنے خیالات کے ساتھ آزادانہ گھومنے پھرنے کی جگہ دیں گے۔ ان کی لگن اور کام کی اخلاقیات دوسرے ساتھی کارکنوں کو بھی متحرک کرے گی اور انہیں اپنا بہترین کام کرنے کی ترغیب دے گی۔ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کوب کے باشندے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ترقی کی ہوس نہیں رکھتے۔ ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن مقابلہ صحت مند ہوگا۔ یہ خواب دیکھنے والے اپنے کاروبار کو مزید بلندیوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سماجی جانور ہیں اور کسی بھی گفتگو میں آسانی سے پھسل جاتے ہیں۔ یہ ان کے کاروبار کے لیے نئے ساتھیوں کے ساتھ مربوط اور تعاون کرتے ہوئے انہیں اوپری ہاتھ دیتا ہے، جبکہ ایک کوبب نئے اتحادیوں کو دلکش بنانے کے لیے کافی اچھا ہے، لیکن دو حیرت انگیز کام کریں گے۔ لہذا کوبب اور کوبب کاروباری مطابقت کامیابی کا پابند ہے۔ برج حوت، اگر آپ تیزابیت، بدہضمی اور گٹھیا جیسی بیماریوں سے پریشان تھے تو اس ہفتے کے شروع میں یکم گھر میں چاند کی وجہ سے آپ کو ان بیماریوں سے کچھ سکون ملے گا۔ تاہم اس کے باوجود آپ کو وقتا فوقتا اپنے آپ کو معمولی مسائل جیسے نزلہ، زکام وغیرہ سے بچانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس ہفتے کے وسط میں آٹھوں گھر میں چاند کی منتقلی تمام مالیاتی منصوبہ بندی اور حکمت عملیوں کے لیے سڑک کے نیچے جانا ممکن ہے۔ اس سے آپ کو پیسے ادھار لینے پڑیں گے، ساتھ ہی یہ آپ کو ذہنی تناؤ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو خاندانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی پوری کوششیں کرتے ہوئے دیکھا جائے گا۔ آپ کے والدین کی صحت میں بہتری آئے گی اور اس سے آپ کو ان کی مدد حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرے گھر پر چاند کے مکمل پہلو کی وجہ سے آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ کی تجاویز لے سکیں گے۔ کام کے میدان میں ہر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اچھی طرح سے تجزیہ شدہ حکمت عملی اور منصوبے تیار کیے ہوں گے۔ تاہم دفتر میں کوئی شخص ان حکمت عملیوں میں رکاوٹوں کو جنم دے سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آنکھیں کھلی رکھیں اور اپنے ارد گرد ہونے والی سرگرمیوں سے باخبر رہیں۔ اس ہفتے 12 گھر میں عطارد کی موجودگی اور چھٹے گھر میں اس کا مکمل پہلو، وہ طلبہ جو مسابقتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں انہیں اچانک کامیابی مل سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز کرنے اور سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان طلبہ سے دور رہیں جو فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ پائسیز اور پائسیز کی مطابقت دو جذباتی، حساس اور ہمدرد افراد کے درمیان میچ ہوگی۔ وہ ایک گہرا روحانی تعلق اور ایک بھرپور جذباتی بندھن کا اشتراک کریں گے۔ وہ دونوں اپنے ساتھی کو سب سے زیادہ حیرت انگیز شخص پائیں گے اور اپنے رشتے کو بہترین سمجھیں گے۔ وہ دونوں یکساں طور پر پائسیز اور پائسیز کی مطابقت کو کام کرنے کا عہد کریں گے۔ دونوں نشانیوں پر مشتری اور نیپچون کی حکمرانی ہے، لہٰذا وہ ایک فلسفیانہ نقطہ نظر کا اشتراک کریں گے۔ نیپچون دونوں اطراف سے اس بندھن میں تجریدی خیالات، اسرار اور تخیل لائے گا۔ میش پانی کی علامت ہے، دونوں پارٹنرز خوشی سے اپنے ساتھی کی ضروریات کو اپنے سے پہلے پورا کریں گے۔ مینس ایک تغیر پذیر نشانی ہے، وہ شاذ و نادر ہی کسی چیز کے بارے میں بحث کریں گے، اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ اسے جلدی حل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو آسانی سے معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، وہ جسمانی اور جذباتی طور پر ایک دوسرے کی طرف راغب ہوں گے۔ میش اور میش کی مطابقت کا بہترین پہلو وہ آسانی ہے جس کے ساتھ یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ وہ فوری طور پر کلک کرتے ہیں اور گہرا کنیکشن تیار کرتے ہیں۔ یہ جوڑا عام طور پر بہت طویل سفر طے کرتا ہے۔ میش اور مینس کاروباری مطابقت دو جذباتی اور حساس شراکت داروں کا انضمام ہوگی۔ ان کے درمیان گہرے جذباتی تعلقات ہوں گے، بہترین مواصلت اور روحانی تفہیم ہوگی۔ وہ میش اور میش کاروباری مطابقت کو ایک مثالی اتحاد بنانے کے لیے سخت محنت کریں گے۔ واٹر بیئرر کی قبولیت اور غیر فعال ہونا اسے ایک ہموار ایسوسی ایشن بنا دے گا۔ تاہم پائسیز غلط ہے اور آسانی سے منفی ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیے حد مقرر کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں اور انتہائی حساس ہو سکتے ہیں۔ وہ تصادم سے نفرت کرتے ہیں جو میش اور میش کاروباری مطابقت میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ اس بندھن کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ وہ آسانی سے ایک ساتھ بہتے ہیں اور ایک پرامن اتحاد بناتے ہیں۔ وہ ٹیم کے ہر منصوبے پر ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں گے۔ ان کی محبت کی کہانی ایک پریوں کی طرح ہوگی جس میں فکری اور جذباتی تعلق کا کامل توازن ہوگا۔ انہیں کسی اور علامت کے ساتھ اس بانڈ کو حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں گے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کریں گے۔ دونوں طرف سے جذبات میں اتار چڑھاؤ آئے گا،
لیکن انہیں پتہ چل جائے گا کہ کب فاصلہ برقرار رکھنا ہے یا قریب آنا، اور اس سے انہیں ایک پرجوش تعلق برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ ان کی خوابیدہ فطرت میش اور میش میں ایک حامی ہوگی اور میثاق محبت کی مطابقت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس ایک ساتھی ہوگا جس کے ساتھ وہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو بڑے خواب دیکھنے اور اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ ایک خاص اہم بات، سیارہ مشتری حالت مستقیم میں آ رہا ہے، اس لحاظ سے پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ کرنا افضل ہے۔ اس میں پیلے رنگ کے لڈوہے کا صدقہ کر سکتے ہیں، پیلے رنگ کی چنے کی ڈال کا صدقہ، پیلے رنگ کے کپڑے کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام صدقہ کرنا مبارک ہے، اور اس ہفتے کا مبارک وظیفہ کبیرو آمتالو اول آخر دورد شریف کے ساتھ 300 مرتبہ پڑھنا مبارک ہے۔